Okay, are you ready, Ashish? Yes, I'm ready. Akshay, is it okay? Yeah, Yes, it's yeah. better than before. Yes. It's a better. If you can just talk in the mic, it'll be better. Okay. Yeah. I think it's okay now. Okay, just before the pandemic started, I started a series of. Uncle, you got muted. Okay, yeah, okay. No, before this pandemic started, I started a series of message on the subject why God makes us to wait. और इस महामारी के शुरू होने से पहले मैंने एक प्रचार की एक श्रृंखला शुरू करी थी और उसमें यह सवाल था कि क्यों परमेश्वर हमें इंतजार करवाता है। We looked at the life of Abraham. हमने इब्राहिम के जीवन को देखा था। We saw how God prepared him to receive the blessing that he promised him. और हमने देखा था कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को तैयार किया कि जो उसको आशीष देने की जो वचन था उसके लिए कैसे उसको तैयार किया गया। He waited for 25 years, but during the 25 years, Lord taught you a lot of lessons through which Abraham was able to know God more in his life. तो उसको उसके लिए 25 वर्ष इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन 25 वर्षों में परमेश्वर ने उसको जीवन के बारे में बहुत से पाठ को सिखाया। So through which he was able to draw closer to the Lord. और उसके कारण वो परमेश्वर की और नजदीकी में आने पाया। Today we are going to look at two sisters. और आज हम दो बहनों को देखना चाहते हैं who waited for Jesus so much, and during that waiting, Lord taught so many lessons to them and to his disciples. और उनको भी इंतजार करना पड़ा और उस इंतजार की घड़ी में उन्होंने बहुत सी बातों को सीखा और यीशु के शिष्यों ने भी बहुत सी बातों को सीखा। These two sisters they lived in a place called Bethany. और ये जो दो बहनें थी ये बेथनी नाम के स्थान पर रहती थीं। You can turn in your Bible to John chapter 11. आप यूहन्ना और उसका 11 अध्याय निकाल सकते हैं। No, the Bible says both the sisters were very devoted to Jesus. और वचन बताता है कि जो दोनों बहनें थी वो परमेश्वर के और यीशु के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। Luke 10:38 says Martha opened her home for Jesus. और लूका 10:38 में लिखा है कि मार्था ने अपने घर को परमेश्वर के लिए खोल दिया था। It's not only for Jesus, he had another 12 disciples with him. So when you opened the house, it was for everyone. तो उसने जो घर यीशु के लिए खोला तो सिर्फ यीशु के लिए नहीं लेकिन शिष्य भी थे, तो सबके लिए उसने अपने घर को खोला। She must have got a huge house to accommodate about 13 people. और बड़ा घर रहा होगा कि 13 लोगों को बैठाने के लिए बड़ा घर रहा होगा। Also, she must have been an influential person. और हो सकता है कि ये जो मार्था है इसका बड़ा प्रभाव हो। Because when her brother died, so many people from Jerusalem came to visit her and comfort them. क्योंकि जब उसके भाई की मृत्यु हुई तो यरूशलेम से बहुत ढेर से लोग आए उसके पास उसको सांत्वना देने के लिए। No, taking care of so many people is very both tedious and expensive. और इतने लोगों का ख्याल रखने में बड़ा समय लगता है और ये इसमें खर्चा भी होता है। Remember what did Martha said to Jesus? याद करिए कि मार्था ने यीशु से क्या कहा था। Lord, do you not care that my sister left me to do all the work on myself, or on my alone, by myself alone? और मार्था ने क्या कहा था यीशु से कि यीशु क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने ये सारा काम मुझ पर छोड़ दिया है, मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। Making food for so many people is a very tedious and hard job. इतने लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल और बहुत समय लगता है इसमें। But she was willing to do it. लेकिन वो उसको करने की इच्छुक थी। And her devotion to Jesus made her very courageous as well. और क्योंकि वो यीशु मसीह में श्रद्धा रखती थी इसलिए उसमें हिम्मत भी बहुत थी। No, already the Jewish authorities were trying to kill Jesus. और पहले से हम जानते हैं कि जो यहूदी जो शासन के लोग थे वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे। And many of Jesus' disciples deserted him because they were not accepted to accept the teaching of Jesus. और यीशु के बहुत से अन्य शिष्यों ने उनको छोड़ भी दिया था क्योंकि वो यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। And even his family did not believe in him. और उसका परिवार भी उसमें विश्वास नहीं करता था। And Jews had already decided if anyone believes in Jesus and acknowledges Jesus, they will be put out of the synagogue.
और ये भी था कि यहूदियों ने कहा था कि अगर कोई भी अपना विश्वास यीशु में डालता है तो जो जो धर्म की जो उनकी जगह है सिनागोग है उसमें से उनको निकाल दिया जाएगा। In spite of all this problem, she was willing to take him in her home. और इन सारी समस्याओं के बाद भी वो उसको अपने घर में यीशु को अपने घर में लेने के लिए तैयार थी। You know, that is the kind of devotion and love that she had for Jesus. और यह श्रद्धा और प्रेम उसका यीशु के प्रति था। She believed in the end, the last she said she believed that Jesus was the Christ. और अंत में वो ये कहती है कि यीशु मसीह ही क्रिस्त था। No, her sister Mary poured an expensive perfume on his feet and wiped with her hair. और उसकी बहन ने एक बहुत ही महंगा जो इत्र था वो उसके पैर पे उंडेल कर उस अपने बाल से उसको पोंछा था। You know, in today's time, that perfume was worth about 70,000 rupees. आज के समय में वो इत्र करीबन 70,000 रुपए का होगा। She poured it on his feet and wiped with her hair. और उसने वो उसके पैरों पे डालकर अपने बाल से पूछा था। That shows her absolute love and devotion to Jesus. और ये बताता है कि कितनी ज्यादा श्रद्धा उसमें थी, प्रेम था यीशु के प्रति। And she left all the work and she sat at Jesus' feet to just to listen to him. और वो सारा काम छोड़ के यीशु के चरणों पर बैठ गई थी उनको सुनने के लिए। No, she did not sit with him equal level. और बराबरी में आके नहीं बैठी थी, She sat on his feet. लेकिन चरणों में जाके बैठ गई थी। No, in those days, only the disciples sat at the Guru's feet actually. और उस समय में जो शिष्य होते थे वही अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठते थे। She showed a devotion to Jesus as a disciple. और एक शिष्य के प्रति शिष्य की नाई उसने अपना जो श्रद्धा थी वो प्रभु को दिखाई। You know, we could see their devotion and love in all that they did. और जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनका प्रेम उसमें दिखता है। They were close to Jesus and they had a very good relationship with Jesus. वो यीशु के नजदीक थे और यीशु से बड़ा अच्छा संबंध था उनका। So when their brother Lazarus was ill, they sent someone to tell Jesus, the one whom you love is sick. और तब जब उनका भाई लाजरस बीमार पड़ गया तब उन्होंने संदेश भेजा यीशु को कि जिससे तू प्यार करता है वो बहुत बीमार है। They expected him to come immediately to touch him and heal him. और उन्होंने ये अपेक्षा करी कि तुरंत यीशु मसीह आ जाएंगे और उसको छू के उसको चंगा कर देंगे। You know, it was natural expectation और ये स्वाभाविक अपेक्षा थी because they were devoted to him, they loved him, they had good relationship with, so they expected he'll come immediately to touch and heal their brother. और क्योंकि वो यीशु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, उससे प्रेम करते थे, इसलिए वो अपेक्षा कर रहे थे कि वो तुरंत आके उनके भाई को चंगाई दे देगा। But someone please read John chapter 11 verse 6. लेकिन 11 यूहन्ना 11:6 कोई पढ़ दीजिए। Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। You know, there were 2 women very, very devoted to him and going through a lot of pain and struggle, and Jesus stayed back even after knowing that they are going through this. और यहाँ हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां जो थीं वो बहुत कष्ट से गुजर रही थीं और ये सब बात जानने के बाद यीशु ने तय किया कि 2 दिन और रुकेगा वो स्थान पर। They knew if Jesus comes and touches their brother, he will be completely healed. उनको मालूम था कि अगर यीशु आके उसके भाई को छू दे तो वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। They also expected him to come immediately because of the devotional love they had for him. और क्योंकि वो उससे इतनी श्रद्धा रखते थे इसलिए वो अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु तुरंत सब काम छोड़ के आके उनके पास आ जाएंगे। And later on when Jesus came, they both of them said, if you had been here, my brother would not have died. और बाद में उन्होंने कहा भी कि यीशु अगर आप यहाँ पे पहले आ गए होते तो हमारा भाई नहीं मरता। But even after knowing all this, Jesus stayed back 2 more days. लेकिन ये सब जानने के बाद भी यीशु वहां पे 2 दिन उस स्थान पे और रुक गए। No, it is very, very hard, right? और ये जो समझना और देखना ये बहुत मुश्किल है। How could Jesus do that? यीशु ये कैसे कर सकते थे? The two devoted women going through a lot of pain and difficulties, but he still stayed back in the same place for 2 more days. और 2 इतनी श्रद्धालु बहनें
विनती कर रही है, लेकिन यीशु 2 दिन और रुक जाते हैं उसी स्थान पर। Sometimes we go through the same situation. कभी-कभी हम भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। We go through pain and struggle, we pray, and there is no answer. हम संघर्ष से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है We wonder why. और हम सोचते हैं कि क्यों? We may say, Lord, I am devoted to you. और हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं तो इतना ज्यादा श्रद्धा रखता हूँ आप में, I go to the church regularly. और मैं तो नियमित रूप से चर्च जाता हूँ, I pray and we read my Bible every day. और मैं प्रार्थना करता हूँ रोज और वचन भी पढ़ता हूँ, I try to follow you in every way. And I try to keep away from any sin. और हर प्रकार के गलत कामों से, पाप से मैं दूर रहता हूँ और आपके पीछे ही चलता हूँ, I do have good relationship with you. और आपसे मेरा एक अच्छा संबंध भी है। Then why are you not answering my prayer? Why are you making me wait? तो फिर आप मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? He did not answer these two. He did not go back to these two men. Is it because that he did not love them? यीशु मसीह तुरंत उनके पास नहीं गया। क्या इसलिए नहीं गया क्योंकि वो उनसे प्रेम नहीं करता था? Is it because he didn't care for them? क्या इसलिए कि वो उनको, यीशु को उनकी परवाह नहीं थी? Someone please read verse 5, chapter 11, verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. यीशु Lord. मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। No, it is not that he did not love them. It says he loved them. He ऐसा loved नहीं। Martha and Mary. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यीशु उनसे प्रेम नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यीशु तो उनसे बहुत प्रेम करता था, He acknowledged their devotion and love and cared for them. और यीशु मसीह को पूरा इस बात का ध्यान था कि वो सब उनसे, यीशु से प्रेम करते हैं, और यीशु उनकी चिंता करता था। One of the lessons that we have to learn as we go through pain and struggle is और एक शिक्षा जो हमको लेनी है जब हम दुख तकलीफ से गुजरते हैं, तो वो ये है Jesus loves and cares for us. कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। He makes us to wait. It does not mean that he doesn't love us or doesn't care for us. और अगर हमें इंतजार करना पड़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता, कि हमारी परवाह नहीं करता है। And he acknowledges everything you do for Christ. और For जो him. भी आप यीशु के लिए करते हैं, हर बात को वो मानता है, जानता है। So never let that thought come into your mind. तो इस विचार को कभी अपने मन में मत आने दीजिए। The devil may come and slightly whisper in your mind saying that no, Jesus doesn't love you. और हो सकता है शैतान जो है वो आपके मन में आके ये बात कह दे कि देखो प्रभु तो तुमसे प्रेम नहीं करता। He loves you and me even when we go through pain and struggle and wait for him to answer our prayers. और जब हम संघर्ष से, तकलीफ से गुजरते हैं, उस वक्त भी वो हमसे उतना ही प्रेम करता है। Someone read please verse 35 of chapter 11. Jesus wept. यीशु रोया। No, he loved them and cared for them to the point of weeping for those two. और वो उनसे इतना प्रेम करता था कि वो एक बिंदु पे आके रोया भी। He loved them so much to the point of weeping, but still he stayed back when he knew they were going through pain and struggle. और वो इतना उनसे प्रेम करता था कि वो एक समय पे आके रोया भी, लेकिन फिर भी वो अपने उस स्थान पे 2 दिन और रुका। The thing is, once when Jesus did it, that he had a great purpose behind what he was doing. और जब यीशु ने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से यीशु ने ऐसा किया। Now, if you feel that God is making you wait long time, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपको एक लंबे समय के लिए इंतजार करवा रहा है, or allowing you to go through struggles and pain sometime, और या कभी-कभी आप संघर्ष और तकलीफ से गुजर रहे हैं, in spite of all your devotion and love for him, और भले ही आप उससे इतना प्रेम करते हैं और आप इतनी श्रद्धा रखते हैं, rest assured, God has a great plan in what he is doing. तो भरोसा रखिए कि उसके पास बहुत बड़ी योजना है जो कुछ God भी has हो रहा the great purpose for your life.
और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कार्य लक्ष्य है प्रभु God के। God has a great purpose for your waiting. और आपके इंतजार करने में भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। You know, you don't need to worry even when the situation goes out of your control. और अगर परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर भी जाती है तो आपको बिल्कुल भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। You know, the situation may be out of your control, but it is never out of Jesus' control. हो सकता है परिस्थिति आपके नियंत्रण के बाहर हो, लेकिन यीशु के नियंत्रण के बाहर परिस्थिति कभी नहीं हो सकती। So very often when we wait for God to answer our prayers or fulfill our desires, God teaches some valuable lessons. और इसलिए जब अक्सर हम कभी ऐसा होता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है, तो उस दौरान परमेश्वर हमको बहुमूल्य शिक्षा देते हैं। Not necessarily a lesson of correction, आवश्यक नहीं है कि हमें किसी बात के लिए ताड़ना दी जाए या सही करने का शिक्षा दी जाए। He may reveal himself more to you so that you will be able to trust him more and build a good relationship with him. हो सकता है वो अपने आप को आप पे और जाहिर करे ताकि आप उसमें और भरोसा करने पाए। If you know him more, you will be able to build a better relationship with him. और अगर आप उसको और अच्छे से जानने लगेंगे तो आपका संबंध भी प्रभु के साथ और अच्छा बनने लगेगा। Here in this chapter, that is what Jesus was doing. He was revealing himself to his disciples and to the two sisters. और यहाँ पर यीशु यही कर रहा है कि वो अपने आप को और अच्छे से जाहिर करना चाह रहा है इन बहनों पे और अपने शिष्यों पे, So that they would know him more and build relationship with him. ताकि वो उसको और अच्छे से जाने और अच्छा गहरा संबंध उससे बनाए। Jesus also knew that his time had come for departure, to depart from this world. और यीशु को भी मालूम था कि उसका समय आ चुका है जब उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। And before he left this world, he wanted his disciples to know that he is the creator God. और जिससे पहले कि वो संसार से जाए, वो चाहता था कि उसके शिष्य ये जान लें कि सृष्टि करने वाला परमेश्वर प्रभु वही है। And the creator God came into this world. That he really wanted them to know. और वो चाहता था कि वो जान ले कि सृष्टि करने वाला परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी में आया है, ये वो जान ले। Probably the disciple John understood. और शायद जो यूहन्ना जो शिष्य था वो इस बात को समझ गया था। That's why he was able to write in John chapter 1 verse 10, he says, he was in the world and though the world was made through him. और इसलिए उसने पहला यूहन्ना 10 में लिखा कि वो इस संसार में था और भले ही संसार उसके द्वारा ही बनाया गया था। And then verse 3 he says, through him all things were made, without him nothing was made. और उसी के द्वारा ही सारी चीजें बनाई गई थी, उसके बिना कोई भी चीज नहीं बनी। He was able to recognize the fact that Jesus was the creator God. वो इस बात को समझ गया था कि यीशु मसीह ही सृष्टि करने वाले परमेश्वर So हैं। in this chapter, Jesus was trying to reveal himself more to his disciples so that they would know him better in their life. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को और अच्छे से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, प्रकाशन करना चाह रहे हैं कि उसके शिष्य उसको अच्छे से समझ लें कि वो कौन है। And he revealed few things about himself in this और chapter. उसने इस अध्याय में अपने बारे में कुछ और बातें प्रकट करी। Number one, he revealed to his disciples that he is omniscient. और पहली बात जो उसने ये बताई कि उसको सारी बातें पता हैं। He revealed himself, he knew everything. उसने ये बताया कि उसे सारी बातें पता हैं। Someone read please verse 4. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it's for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। Yeah. See, he showed them, he knew much before what's going to happen, even before that happened. ये बात यीशु ने उनको जाहिर करी कि यीशु को पहले से पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, जिससे पहले ये सब बातें हुई। He says, this will not end in death. और उसने कहा कि ये जो बीमारी है इसका अंत मृत्यु में नहीं होगा। It will end in resurrection. That's what he said. That's what he will come back to life. और वो दोबारा जीवित होगा, दोबारा जीवन प्राप्त करेगा। And as he said, God's glory was revealed in that place. और उसने कहा कि परमेश्वर की महिमा जो है वो वहां पे प्रकट हो। So he knows, he says he knows what will happen in the future. तो वो कह रहा है कि वो जानता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। Also, please read verse 11, chapter 11, verse 14 and 15.
So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let's go to him. Yeah. Hindi, please. तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। No, he already showed them that he knows the future. उसने ये दिखा चुका था पहले कि उसको भविष्य के बारे में सब मालूम है। Now he shows that he also know what has happened already. Can you repeat that please? uncle? He also knows that he shows them that he knows what had happened. और वो ये भी बताता है कि उसको मालूम है कि क्या वहां पे हुआ था, हो चुका है, ये भी यीशु को मालूम है। He knows both the past and the future. उसको जो हो चुका है वो भी पता है और जो होने वाला है वो भी पता है। He revealed himself to the disciples saying that I know both future and the past. और उसने अपने आप को इस बात में प्रकट किया और जाहिर किया कि मुझे जो हो चुका है मुझे वो भी पता है और जो होने वाला है वो भी पता है। No, there is only one person who knows our past and the future. एक ही व्यक्ति है जिसको हमारा जो भूतकाल है वो भी पता है और जो भविष्य काल है वो भी पता है। There's only one person who has the ability to know us. और एक ही व्यक्ति है जिसके पास की क्षमता है जो हमें इस प्रकार से जान सकता है। That is only the omniscient God and God alone. और वो है सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर और केवल परमेश्वर। And now Jesus says, I know your past and the future. और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घटना हो चुकी है वो भी मुझे मालूम है और जो होने वाला है वो भी मुझे मालूम है। He reveals himself to them as the omniscient God at that point. और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। He wanted them to believe in the truth and trust him completely. वो चाहता था कि वो इस सत्य बात में विश्वास करें और पूरा भरोसा यीशु में बना के रखें। So that is one of the things that Lord wanted them to learn during this waiting period. और इस इंतजार की घड़ी में परमेश्वर चाहते थे कि यीशु ये बात वो लोग वहां पे सीखें। They also knew they have to go to Bethany. और ये मालूम था कि उन्हें बेथनी जाना ही है। They knew Jesus loved Martha, Mary, and their brother. और उनको मालूम था कि यीशु जो थे वो मार्था, मरियम और उनके भाई से बहुत प्रेम करते हैं। Disciples knew he was very sick. और शिष्यों को ये भी मालूम था कि वो बहुत बीमार है। So they were eagerly waiting to go. तो वो सब इंतजार कर रहे थे कि कब जाएंगे बेथनी। During that waiting period, God taught them lesson about himself. और इस इंतजार के घड़ी में शिष्यों को परमेश्वर ने ये बात सिखाई। The second thing that he revealed about himself is दूसरी बात जो उसने अपने बारे में सिखाई वो ये he is in control and there is no emergency for Jesus. कि वो है नियंत्रण में और परमेश्वर के लिए कभी भी कोई घटना आपातकालीन नहीं होती है। There is no emergency situation for Jesus. यीशु के लिए कभी भी कोई घटना आपातकालीन नहीं No, होती है। every human being go through emergency situation. और सारे जो मनुष्य हैं वो कभी न कभी किसी आपातकालीन स्थिति से गुजरते हैं। Very often we feel that we have to do that certain particular thing very quickly before it gets too late. और हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें बहुत जल्दी करनी है जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। And we go through a lot of tension and anxiety to finish that work quickly. और बहुत ही मानसिक तनाव और व्याकुलता से गुजरते हैं क्योंकि वो चीज हमें बहुत जल्दी खत्म करनी है। The only person who never feels emergency is God himself. और एक व्यक्ति जिसको कभी कोई बात आपातकालीन नहीं लगती है वो है परमेश्वर। He never feels or thinks that there is something need to be done very urgently. उसको कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि किसी बात को बहुत आपातकालीन स्थिति में करना ही है। No, he is all knowing, all powerful. There is nothing impossible to him. क्योंकि वो सब जानता है और वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, इसलिए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He has the power to do anything at any time, whatever he wants. और जो भी वो करना चाहता है किसी भी समय पे किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। So God never feels an emergency. इसलिए परमेश्वर कभी भी आपातकालीन स्थिति उसके मन में कार्य में नहीं आती है। He never feels if we don't do it now, it will be too late. उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। He is always in control. वो हमेशा नियंत्रण में रहता है। That is exactly what Jesus was doing there at that time. और उस समय में यही बात जो है वो यीशु मसीह कर रहे थे। Now for sisters and the disciples, it was an emergency, बहनों के लिए, शिष्यों के लिए ये आपातकालीन स्थिति थी, but not for Jesus. यीशु के लिए नहीं। He knew what's going to happen. उसको मालूम था क्या होने वाला है।
and he knew what he was going to do. और वो क्या करेगा ये भी उसको मालूम था, He was in control. और पूरा नियंत्रण यीशु के हाथ में था। For Jesus, it was not an emergency. यीशु के लिए यह आपातकालीन स्थिति नहीं थी। He knew he was in control. उसको मालूम था कि वो नियंत्रण उसके हाथ में है। Again, he was revealing himself to his Jesus as a creator God. और वो एक बार फिर से अपने आप को सृष्टि करने वाले परमेश्वर के रूप में दिखा रहा था। As all powerful and omniscient God, only God has the ability not to feel any emergency. और क्योंकि वो सब कुछ जानता है, पहले से शक्तिशाली परमेश्वर है, इसलिए उसी के पास ये क्षमता है कि वो किसी भी परिस्थिति को आपातकालीन नहीं समझता है। Only God can do what Jesus did that time. और यीशु ने जो किया, ये परमेश्वर ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। So he reveals himself again to his disciples. He is the God creator. और वो ने अब उसने अपने शिष्यों को फिर से दिखाया, दर्शाया कि वही परमेश्वर है। And in Bethany, और बेथनी में Martha and Mary waited and waited and waited. वहां पर मरियम और मार्था उसका इंतजार करती रही। They waited for Jesus to come, but Jesus never turned up. वो इंतजार करती रही कि यीशु कब आएगा, लेकिन यीशु नहीं गए। And then their brother died. और फिर उनके भाई की मृत्यु हो गई। They must have been completely shattered and broken. और मेरे पूर्ण रूप से वो टूट चुकी होंगी। You know, they believed Jesus will immediately come, definitely will come. उनका विश्वास था कि यीशु तुरंत आएंगे, अवश्य आएंगे। They believed that their brother will live if Jesus comes and touches him. और उनका विश्वास था कि उनका भाई जीवित रहता अगर यीशु आके उनको छूता और चंगाई देता। But Jesus never came and their brother died. लेकिन यीशु नहीं आए और उनके भाई की मृत्यु हो गई। They never expected this. ये बात उन्होंने कभी सोची नहीं थी। But Martha, Mary, and the disciples learned the most valuable lessons, few most valuable lessons that day. लेकिन उस दिन मार्था ने और मरियम ने और शिष्यों ने यीशु के बहुत बहुमूल्य शिक्षा उस दिन सीखी। They learned something new about him that day. और यीशु के बारे में एक नई बात उन्होंने सीखी। They learned he is the omnipotent God. और उन्होंने ये सीखा कि सारी सामर्थ और शक्ति जो है वो यीशु के पास है। You know, both Martha and Mary said to Jesus when they saw him, "If you had been here, our brother would not have died." मार्था मरियम ने कहा यीशु से कि अगर तू यहाँ पहले आ गया होता तो हमारा भाई नहीं मरता। They both believed Jesus had power only when he comes and touches people to heal them. और उनका ये विश्वास था कि यीशु में शक्ति है कि जब वो आके लोगों को छुएगा, ये शक्ति यीशु में है कि वो चंगाई मिल जाती। They limited his power. और उन्होंने एक प्रकार से उसकी शक्ति को छोटा कर दिया था। They also thought Jesus did not know the seriousness of their brother's sickness, so he came very late and our brother died. उनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह नहीं समझ पाए कि कितना ज्यादा ये मामला जो था वो आपातकालीन था, और इसलिए यीशु को नहीं मालूम होने की वजह से उनका भाई मर गया। Now they believed it's gone. All the hope is gone. Now Jesus can't do anything. अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो सारी आशा ही खत्म हो गई, अब तो भाई मर गया। They did not have any idea about Jesus at that point. और उनको यीशु के सामर्थ्य के बारे में इस वक्त कुछ भी बात मन में नहीं थी, ध्यान में नहीं आ रही थी यीशु की। You know, Martha even said to him in verse 22. और 22वें पद में मार्था ने तो ये भी कहा। Somebody please. Verse 22. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। I know that even now God will give you whatever you ask him. और मैं जानती हूँ कि अभी भी अगर तुम कुछ मांगोगे तो परमेश्वर वो देगा। You know, she thought Jesus was a prophet. He has to done everything asking God. Sorry, can you repeat that? She thought he was a prophet. You only need to ask God for everything. और उसको लगा कि जो यीशु मसीह वो एक नबी हैं और हर बात के लिए उनको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। And she never believed Jesus could bring a dead man to life. ये विश्वास नहीं होगा उसको कि यीशु एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। That's when Jesus said, "Remove the stone from the tomb." और जब यीशु ने कहा कि इस पत्थर को कब्र पर से हटाओ,
Immediately Martha says, no, Lord, it's already 4 days. There will be a bad odor. तो मार्था ने कहा, अरे 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तो यहाँ से एक सड़ने की महक आएगी। No, she did not believe. She did not know the omnipotent power of Jesus. उसको नहीं मालूम था कि यीशु का जो एक शक्तिशाली जो उनका स्वभाव है वो क्या है। But on that day, by raising Lazarus, Jesus proved that he is omnipotent God. लेकिन उस दिन लाजरस को जीवित करने में यीशु ने ये साबित कर दिया कि वो ही सब शक्तिशाली परमेश्वर है। No, instead of saying, even now, if you ask anything, God will provide, God will give you. और सॉरी अंकल, Instead of telling Jesus, even now, if you ask God anything, that He will give you. और बजाय यीशु से ये कहने के कि अगर परमेश्वर से तुम मांग लो पिता से, तो वो जो मांगोगे वो दे देगा। She should have told you, you had, even now, you have the power to do anything you want. तो उसको ये कहना चाहिए था कि आपके पास आज भी सामर्थ्य है कि जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। But unfortunately, she did not know Jesus that well at that point. लेकिन उस समय वो यीशु मसीह को इतने अच्छे प्रकार से नहीं जानती थी। The second lesson that they learned that day is, दूसरा जो सबक उन्होंने उस दिन सीखा वो ये था, they learned He is the author of life. वो सीखा उन्होंने कि जीवन देने वाला वही है। Verse 23. Somebody read, please, verse 23. Jesus said to her, "Your brother will rise again." No, Jesus, Hindi, please. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। So when Jesus said to her, said your brother will rise again, she immediately said, I know he will rise in the resurrection day. तो जब यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, तो मार्था ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। You know, Jesus said, I am the resurrection and the life. और यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। No, there was tremendous amount of force in that verse. और इस बात को कहने में बहुत सामर्थ्य ये पद है, I am the resurrection and the life. कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। He says, I am the author of resurrection. वो कह रहा है कि ये जो जीवन है और पुनरुत्थान है वो देने वाला मैं ही हूँ। It depends on my power and my will. ये मेरी इच्छा और मेरी सामर्थ्य पे ये बात निर्भर करती है। You said your brother will rise again on the resurrection day. और तुमने कहा कि तुम्हारा भाई जो है वो पुनरुत्थान के दिन जीवित होगा। But who will raise him up? लेकिन उसको जीवित करेगा कौन? I am the resurrection. I am the author of resurrection. मैं हूँ जो जीवन देने वाला हूँ। Now or then, it is I who bring people to life. और चाहे अभी चाहे उस दिन वो मैं होऊंगा जो लोगों को वापस जीवित He करूंगा। says, I am the source of life, the life-giving life. और उसने कहा कि मैं हूँ जीवन का स्रोत, मैं हूँ वो जीवन जो जीवन देता है। He was teaching him, she was teaching her, he was not yet mere man, he is the author of life. और वो कह रहा था कि मैं एक मनुष्य नहीं हूँ केवल, लेकिन मैं जीवन देने वाला हूँ। And he says, he who believes in me will live even though he dies. और उसने कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है वो जीवित रहेगा भले ही उसकी मृत्यु हो You जाए। know, very, very powerful words. और ये बहुत शक्तिशाली शब्द है यहाँ पर। He claims that if a person believes in him, even if he dies, he will live. उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुझ में विश्वास करता है तो भले ही उसकी मृत्यु हो जाए फिर भी वो जीवित रहेगा। He will die in this world, but he will live with me in heaven forever. That's what he means. तो वो कहना चाह रहा है कि इस संसार में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन स्वर्ग में वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। He says, I have the power to give a person life after his death. वो कह रहा है कि मेरे पास शक्ति है, सामर्थ है कि इस जीवन के मृत्यु के बाद मैं आगे का जीवन दे That's सकता what he हूँ। says. I am the life-giving life. I am the author of life, author of resurrection. इसलिए वो कह रहा है कि मैं ही हूँ पुनरुत्थान देने वाला, नया जीवन देने वाला मैं ही हूँ। And somebody read please verse 26. 26वां पद। And Verse whoever And Yeah. whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Here he talks about spiritual death. और यहाँ पर यीशु जो है वो आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं।
He says, a person lives and believes in me will not die spiritually. और वो कह रहा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो उसकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। He live here after his physical death. He will live with me. That's what he means. और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जीवित है और यहाँ पर जब उसकी मृत्यु संसार में हो जाएगी उसके बाद भी वो मेरे साथ जीवित रहेगी। Now here he is teaching some great truth about himself. और यहाँ पर वो अपने बारे में बहुत बड़ा सत्य सिखा रहा है। He said only he is the author of life and the resurrection. वही है जो पुनरुत्थान देने वाला और नया जीवन देने वाला यीशु ही है। He says he is the only source of life. वही एकमात्र स्रोत है जिससे जीवन आता है। He says only he has the power to give life after death. और वो कह रहा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन देने का जो सामर्थ्य है वो यीशु के ही पास है। Well, only the person who believes in him when he is in the world will live with him in heaven. That's what he claims. और वो कह रहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है इस दुनिया में जब वो मरेगा तो वही उसके बाद स्वर्ग में मेरे साथ होगा। And as I said earlier, he knew his time for departure has come. जैसा कि मैंने पहले कहा था उसको मालूम था कि उसका समय जो है इस संसार से जाने का वो आ चुका है। So he wanted to know who he is. तो वो चाहता था कि वो जान ले कि वो कौन है। And he wanted to know only he matters. और वो चाहता था कि वो जान ले कि यीशु मसीह क्या महत्व है और सिर्फ यीशु मसीह को जानना ही सबसे आवश्यक बात है, ये वो जान ले। And he wanted to know he is the only source of life who can give the eternal life to people. और वो ये भी जान ले, वो लोग जान ले कि वही है जो अनंत काल का जीवन दे सकता है, वही एकमात्र स्रोत And the third thing they learned is और जो तीसरी बात उन्होंने सीखी वो ये there is no hopelessness in Jesus. कि जब यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा उसमें कोई आशाहीनता नहीं मिलेगी। Before Jesus arrived in Bethany, जिससे पहले यीशु बेथनी में पहुंचे, the sisters had lost all their hope. जो बहनें थी उनकी सारी आशा जा चुकी थी। And their brother died and already in the tomb for 4 days. उनका भाई मर चुका था और 4 दिन से कब्र में था। No hope of him coming back. कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर कैसे आएगा। And they thought the brother is gone and the story is over. और उन्होंने सोचा कि अब तो भाई चला गया और बातें सारी खत्म हो गई। They thought as long as he was alive, there was hope Jesus can come and touch him and heal him. और उन्होंने सोचा कि जब तक वो जीवित है तब तक तो आशा है, यीशु आके उसको छू सकता है, चंगा कर सकता है। Now he is gone and he is in the tomb. Now Jesus can't do anything about it. अब तो वो गया, मृत्यु हो गई, अब तो वो कब्र में, अब तो यीशु कुछ नहीं कर सकता। On that day, Jesus showed them there is no hopelessness in Jesus. और उस दिन यीशु ने उनको दिखाया कि यीशु में कभी भी आप आशाहीन नहीं हो सकते। He showed them there is no end in Jesus. वो ये दिखाया उसने कि यीशु में किसी भी बात का अंत नहीं हो सकता। When you feel that is finished, he starts. और जब आपको ऐसा लगे कि बात खत्म हो गई है सारी, तभी वो शुरुआत करता है। Because in him there is no end. क्योंकि उसमें कोई बात का अंत नहीं होता। It may be end for us, but never for him. हमारे लिए किसी बात का अंत हो सकता है, उसके लिए अंत नहीं। No, in Jesus there is always a new beginning. यीशु मसीह में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। But the new beginning starts only when you believe and say and trust in you completely. लेकिन वो शुरुआत जब होती है जब हम उसमें विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि हम यीशु तुझ में ही पूरा विश्वास करते हैं। Now verse 27, Martha had to say, I believe that you are the Christ. 27वां पद में मार्था ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही मसीह है। The Son of God who was to come into the world. कि तू ही है परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था। Now Martha had to believe, acknowledge and confess that Jesus Christ is the Lord. और मार्था को इस बात में विश्वास करना पड़ा और इस बात को मानना पड़ा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। He had to understand, confess that he is the omnipotent, omniscient God. और उसको इस बात को मानना पड़ा कि यीशु मसीह ही वो सब जानने वाला और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। Then she saw the miracle. तब उसने उस पुनरुत्थान को देखा। उसने उस आश्चर्यक्रम को देखा। Yeah. She saw that miracle. Okay. She learned that day there is no end in Jesus and there is no hopelessness in Jesus. उसने उस दिन ये सीखा कि यीशु मसीह में किसी बात का अंत नहीं है और यीशु मसीह में कभी भी आशाहीन नहीं हो सकते हैं। No, that day she was able to understand few things.
उस दिन ये सब बातें, कुछ बातें उसने सीखी and she was able to understand and accept that Jesus was the Son of God. Before, her idea was different about God. Now she knows this is the Son of God. और अब इस बात के बाद अब वो यीशु मसीह के बारे में अच्छे से समझ रही थी। पहले, इस घटना के पहले उनकी समझ कुछ और थी और अब उनकी समझ बदल गई थी। And she was able to see the miracle of resurrection. और उसने पुनरुत्थान का जो आश्चर्य कर्म है वो उसने देखा। She was in hopelessness. Now her brother was returned back to her. और इससे पहले वो बिल्कुल आशा रहित थी, लेकिन अब उनका भाई वापस आ गया था। She learned to understand Jesus more. और उसने सीखा कि यीशु को और कैसे गहराई से समझें, ये उसने सीखा। You know, God never does anything without a purpose. परमेश्वर कभी भी किसी कार्य को किसी कारण के बिना नहीं करता। If God is allowing you to wait and allowing you to go through pain and struggle, then there is a purpose behind it. अगर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है कि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। Maybe he is trying to teach something about himself, हो सकता है वो अपने बारे में आपको कुछ सिखाना चाहता है, or trying to correct you in some way. हो सकता है वो आपको किसी बात में आपको अनुशासित करना चाह रहा हो। No, as you wait for God and trying to look for God's answers, और जब आप परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं और प्रभु में अपने सवालों का जवाब को ढूंढते हैं, God is trying to teach you some lessons. तो परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। No, don't ever say this problem was brought in by devil and the Lord is helping you to come out. ये मत कहिए कि ये परेशानी जो है शैतान मुझ पे लेके आया है और अब परमेश्वर मदद कर रहा है कि मैं इससे बाहर निकलूं। Let me tell you very clearly something. The devil does not have any power over you. मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि शैतान की आपके ऊपर, आपके जीवन में कोई उसके पास सामर्थ्य नहीं है। He cannot bring any trouble on you unless it is allowed by God. और वो कोई भी समस्या आपके पास नहीं आ सकती जब तक प्रभु उसकी अनुमति ना दे। The moment you say the devil has allowed it and the God is helping me, और जब भी अगर आप कभी ऐसा कहते हैं कि ये तो शैतान ने का कार्य है और प्रभु मेरी मदद कर रहा है, you will miss the lesson the Lord is trying to teach you. तो आप वो शिक्षा नहीं समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे जो प्रभु सिखाना चाहता है। Because you already put the blame on the devil. क्योंकि आपने तो उसका जो इल्जाम है वो शैतान पे लगा दिया। No, I have not done anything. The devil is bringing me problem. The Lord is helping me. That's it. और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये शैतान ने सारा मुझ पे इतनी समस्या डाल दी है और परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है। So you will miss the lesson the Lord wants to teach you. तो जो प्रभु आपको सिखाना चाह रहा है वो आप चूक जाएगा। Always focus your eyes on God, not on the devil. अपनी आंखों को हमेशा परमेश्वर पे लगाएं, शैतान पे नहीं। No, very often we focus our eyes on the problem so much. कभी-कभी हम अपनी सारे ध्यान को समस्या के ऊपर इतना ज्यादा लगा देते हैं। We only wait for him to bring us out of it somewhat. और बस हम इंतजार करते हैं कि बस इस समस्या से हमें कैसे कब प्रभु बाहर निकाल दे। We lose focus on God and the lesson that he is trying to teach us. अपना ध्यान हमारा परमेश्वर पे से हट जाता है, जो सिखाना चाह रहा है उससे ध्यान हट जाता है। So whenever you go through problem and then God seems to be quiet, और जब कभी इसलिए आप समस्या से गुजरते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर खामोश हैं, just to focus your eyes on God instead of on your problem. तो अपने आंखों को, मन को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करिए, ना कि उस समस्या के ऊपर। And then probably he may reveal himself to you more and more. और तब फिर वो अपने आप को आपको और अच्छे से दर्शाएगा। And he may correct you in some ways. हो सकता है किसी बात में वो आपको अनुशासित भी करे। So that the only thing is the relationship with Jesus will be strengthened. और उससे ये होगा केवल कि जो आपका संबंध है प्रभु के साथ वो और मजबूत बनेगा। Don't worry about your problem. समस्या के बारे में चिंतित मत होइए। Because in Jesus there is no hopelessness. क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी बात आशाहीन नहीं है। In Jesus, when you say it is end, in him there is a beginning. और जब कहें आप, ऐसा लगे कि यीशु में अब ये सारी बातें खत्म हो गई हैं, तो जान लीजिए कि वहीं से शुरुआत है। There is no end in Jesus. यीशु मसीह में किसी बात का अंत नहीं है। There is always new beginning. हमेशा एक नई शुरुआत मिलेगी यीशु में। So try to learn whatever the Lord wants you to learn during the waiting period. और इसलिए इंतजार की घड़ी में प्रभु जो आपको सिखाना चाह रहा है उसको सीखने की कोशिश करिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we want to thank you for this valuable lesson that
you have taught to each one of us this morning. प्रभु जी, इस बहुत ही मूल्यवान शिक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें सिखाया. And Lord, it is true that so many times when we are waiting, we are filled with all kinds of anxious thoughts and we doubt. प्रभु जी, सच है कि कितनी बार जब हम किसी बात का इंतजार करते हैं तो हमारे मनों में बहुत व्याकुलता और शंका भी उत्पन्न हो जाती है. Lord, even now as we are going through such a difficult time all around us, so many times there are doubts that come in our minds. प्रभु जी, आज भी जब हम इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, बीमारी से, कई बार कुछ शंका वाले विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं परमेश्वर. We doubt whether you are in control or not. We doubt whether you care about us or not. We doubt why so many people have died, our loved ones. प्रभु जी, हम कितनी बार हमारे मनों में ये विचार आए हैं और कभी कभी घर भी कर जाते हैं कि क्यों ये बीमारी आ रही है, क्या आप नियंत्रण में नहीं हैं, क्यों हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई. Lord, we pray this morning that especially now in this pandemic, help us to focus on you alone. परमेश्वर, इस मुश्किल घड़ी में हमारा ध्यान आपकी ओर से न हटने पाए. Help us, Lord, to get a deeper understanding of all the things that are happening in relation to you. प्रभु जी, जो कुछ भी हो रहा है उन सब बातों को गहराई से समझें और आपकी ओर से आपके दिए हुए ज्ञान के द्वारा हम इन सब बातों को समझें. Help us, Lord, not to lose hope and help us not to know that because you are in control there is a new beginning. प्रभु जी, हमें जान लें कि आप नियंत्रण में हैं और क्योंकि आप नियंत्रण में हैं इसलिए हमारे पास आशा है. In our personal lives also, Lord, we pray this morning that if anybody is going through any time of period of disappointment, Lord, you will reach out to that person. परमेश्वर, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जो है वो निराशा से गुजर रहा है परमेश्वर, तो आप उस तक पहुंचेंगे परमेश्वर. And the way you reveal to Martha, Mary and the disciples, you will again reveal yourself to that person. प्रभु जी, जैसे आपने मार्था, मरियम और शिष्यों को अपने बारे में सिखाया, दर्शाया, वैसे ही आज भी आप इस व्यक्ति को सिखाएंगे यदि कोई समस्या से गुजर रहा है. Thank you, Lord, for speaking to us. Help us, Lord, to carry this thought throughout the week and in the time to come and know that you are in control. परमेश्वर, ये विचार को हम अपने दिल और दिमाग में बैठाए रखें परमेश्वर, और ये जान लें कि हर चीज आपके नियंत्रण में है. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. Amen.